Students, let's continue with our chapter number 2, polynomials. ठीक है? So, 1 minute. Yes. So we have done exercise 2.3, and before exercise 2.3 we had questions of long division that also we discussed, right? Now after that we have 1 minute. Yes, bache. After that we have factor theorem. See on page number 40, open page number 40. After exercise 2.3, factor theorem, let us read. If Px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of Px if P of a is 0. And second part is, if P of a is 0, then x minus a is a factor of Px. Look here, you will write this statement in your fair notebook. Factor theorem लिखकर ये statement लिख लोगे. इसका मतलब क्या है समझो. Let us say we are having a polynomial n greater than equal to 1 means degree चाहे 1 हो या 1 से greater हो. x cube minus x square plus 3 in general. ठीक है? And a be any real number. Any real number, I will take real number as 1. ये लो प्लस कर लेंगे यहाँ 1 2 स्क्वायर यहाँ माइनस 5. चलो ठीक है. अब देखो, I will take any real number. Let us, I am taking it as 2. ठीक है. This is a polynomial and a be any real number. So I have taken any number is given to you. अब what they are saying in the factor theorem कि किसी भी polynomial का factor अकेला constant number तो नहीं हो सकता. Then they are saying if this is the polynomial and this is any real number, then x minus a means x जो हमारे पास real number होता है ना उसको हम x के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, फिर 2 को उधर लेके जाएंगे. क्या बनेगा? x minus 2 means we have to make a polynomial, right? Then they are saying that if this is divisible by this means अगर x को 2 पुट करके 0 आता है तो हम कह सकते हैं that x minus 2 is the factor of this. बात समझ में आ रही है? वही है, दोबारा सुनो, जो रिमाइंडर थ्योरम में किया था ना बेटे वैसा ही है. उसमें क्या था, एक वैल्यू गिवन होती थी, उसको पुट करके देखते थे और बताते थे कि क्या वो उसका 0 है कि नहीं, राइट? या फिर क्या होता था, एक पॉलिनोमियल गिवन होता था, डिवाइजर को 0 के इक्वल इक्वेट करके वैल्यू निकालते थे, फिर पुट करते थे, अगर 0 आता था तो वो इसका 0 है, नहीं तो नहीं. फैक्टर थ्योरम में भी करना वैसे ही है, बस स्टेटमेंट अलग है. ठीक है, स्टेटमेंट अलग है. हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको और क्लियर होगा. Come to exercise 2.4. Exercise 2.4 में first question, determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. 4 polynomials आपको given है, आपको बताना है कि x plus 1 इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. ठीक है. अब हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल का दूसरा पॉलिनोमियल फैक्टर कब होता है? जब हम उनको डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आए? 0, राइट? बट यहाँ पर डिवीजन नहीं लिखा हुआ, सो what we will do, we have learned remainder theorem. इधर देखो कैसे करेंगे, आप देखो तो समझ आएगा. पहला पार्ट है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक है. एंड qx is x plus 1.
हमने ये बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, आप क्या करोगे, क्यू एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट कर दोगे, जो डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1. Now we will put this value in px. P of -1. -1 cube plus -1 square plus -1 plus 1. ठीक है, -1 का क्यूब -1, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1. Plus 1 minus 1 get cancelled, plus 1 minus 1 will get cancelled. We get 0. Right? Now, when we have equated our divisor equal to 0, whatever value we are getting, उस वैल्यू को हमने जब पॉलिनोमियल में फिल किया तो हमारे पास क्या आया, 0. 0 इज व्हाट, क्या है 0? 0 रिमाइंडर है. ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस remainder is 0, therefore x plus 1 is a factor of px. ठीक है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में करके क्या लिखते थे, रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइजर को इक्वेट करते थे, 0 अगर आता था तो हम लिखते थे that yes, this is the 0 of this polynomial, this number is the 0 of this polynomial. वहां पर हम सिर्फ नंबर की बात करते थे कि -1 इसका 0 है कि नहीं. 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं -1 is the 0 of this polynomial. And if we have to answer in form of factor, then we will write पूरा डिवाइजर जो है x plus 1 is a factor of px. I hope it is clear. Any doubt to anyone? पूछ लो, कोई डाउट है, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Yes, Aparam? Ma'am, likewise we do long division method. We have to solve it till we get a constant polynomial. Like suppose here we have done with the remainder theorem. Remainder theorem मतलब वैल्यू पुट करके. अगर आप इसकी लॉन्ग डिवीजन करो, सपोज क्वेश्चन आ जाए यूजिंग लॉन्ग डिवीजन टेल वेदर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, फिर लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी. तब तक करोगे जब तक आपके पास कांस्टेंट, यस कांस्टेंट आ जाए. कांस्टेंट कैन बी 0 और एनी नंबर. मैम वो हम तब तक करेंगे ना जब तक वेरिएबल आता रहेगा, हम कर ही जाएंगे. हमें सिंपल एक नंबर चाहिए. मैं बताती हूँ आपको. ये आपने नोट कर लिया अपने यहाँ तक? यस मैम. जैसे क्या होता है, हम लॉन्ग डिवीजन कब तक करते हैं, जैसे अगर आपके पास, नोट नहीं करना सिर्फ समझो, यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल है, कुछ भी है, ठीक है, यहाँ है x प्लस 1, रिमाइंडर में अगर करते करते अगर x आएगा, x प्लस कुछ भी, तो आप आगे करोगे. सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाहर क्या है, क्वाड्रेटिक. आपने सॉल्व किया, सॉल्व कर कर आपको रिमाइंडर में लीनियर पॉलिनोमियल आ गया. ठीक है, मींस डिवाइजर में जो x की पावर है वो ज्यादा, रिमाइंडर में जो x की पावर है वो कम. फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, वही आपका रिमाइंडर होगा. सपोज ये या तो लॉन्ग डिवीजन करते वक्त कांस्टेंट आए या फिर वेरिएबल की पावर डिवाइजर की पावर से कम, फिर कुछ कर ही नहीं ना सकते. यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड थोड़ी करेंगे. यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ छोटा एक्स है अकेला, तो बस वहीं छोड़ देंगे. ओके मैम. ठीक है, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? तो बेटा बुक में देखेंगे सेकंड पार्ट. हमने बताना है कि x प्लस 1 इनमें से किसका फैक्टर है. तो हर एक पार्ट में हम x को क्या पुट करेंगे, -1, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है. तो सेकंड पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, थर्ड पार्ट आल्सो यू कैन डू योरसेल्फ. कम टू द फोर्थ पार्ट. और ये दोनों पार्ट करने हैं, कल पूछूंगी मैं. ऐसे नहीं कि जो होमवर्क दे दिया बस दे दिया, उसके बाद हम करें ही ना.
x cube minus x square minus 2 plus root 2 x plus root 2, and qx is x plus 1. Again, we have to tell same question that whether this is the factor of this or not. ये बताने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग डिवीजन नहीं लिखा हुआ. अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं लिखा हुआ तो बेटे डिवीजन नहीं करनी है, आपने फैक्टर थ्योरम ही यूज करनी है, मींस वैल्यू ही पुट करनी है. qx is equal to 0. Now p of minus 1, look here on the board. -1 क्यूब माइनस, ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, ये माइनस ऑलरेडी था, देन -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, बोर्ड पे देखेंगे 2 प्लस रूट 2, और यहाँ क्या है -1, तो उसकी जगह पे मैंने ब्रैकेट में लगा दिया -1 प्लस रूट 2. आगे देखो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब बेटे -1, देन दिस -1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इट विल बी 1 ओनली. ये जो माइनस था ऐसे माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, यहाँ क्या है माइनस का स्क्वायर जो कि ऑटोमेटिकली इटसेल्फ प्लस बन जाएगा, तो ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा. ठीक है, देन सी दिस -1 इज गेटिंग मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, पूरी ब्रैकेट है ना, पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, 1 into 2 2, 1 into root 2 means 1 multiply this full bracket, तो वही आएगा 2 plus root 2, then we have this plus root 2. -1 -2 plus 2 plus root 2 plus 2. Positive 2 negative 2 cancel. What is root 2 plus root 2? A plus A, 2A. Similarly, root 2 plus root 2 is 2 root 2. Fine. So 1 minute, Renuka. So we have seen that the remainder is not 0. So you will write, since remainder is not 0, therefore x plus 1 is not the factor of px. हाँ जी बेटा बोलो. मैम जब हमने ब्रैकेट खोला 2 रूट का, तब हमने उससे -1 से मल्टीप्लाई किया. मैम हमारा 2 का फर्स्ट साइन माइनस से प्लस हो गया. मैम हमारा जो रूट का साइन है प्लस रूट का, मैम वो भी चेंज होगा, वो भी तो माइनस आएगा. ये देखो बेटा, ये देखो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो -1, ये वाला -1 स्क्वायर इज माइनस, पहले आप इसको छोड़ दो -1 को, ब्रैकेट खोल लो, -2 माइनस रूट 2 इंटू -1, ऐसे कंफ्यूजन होगी आपको. या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाला जो माइनस है इसको अंदर ले जाओ, तो बाहर क्या बचेगा प्लस, -2 माइनस रूट 2. रेणुका समझ आ रही है बात? यस मैम. रेणुका है ना. उसके बाद ये है -1, ये -1 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी. जब -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2, और -1 माइनस रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा रूट 2 के साथ, माइनस माइनस प्लस रूट 2. तो ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा. यस मैम. क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो फिर यहाँ कहीं भी माइनस नहीं रहेगा इन दोनों के साथ. ठीक है, यस मैम. फाइन, म्यूट योरसेल्फ. सो व्हेन वी डू प्रैक्टिस ऑफ सच सम्स, देन वी गेट टू नो कि अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं.
अगर पहली बार करते हैं कोई चीज तो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है. So that is why you are having plenty of time now. You can do the sums from the book, from the NCERT exemplar, from the extra books. अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, इंटेलिजेंस चाहते हो कि आपको समझ आए, आपकी नॉलेज बढ़े, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. So you will write further yourself. Since remainder is not zero, write down. Since remainder is not zero, therefore x plus 1. Therefore, x plus 1 is not a factor of px. Fine. Now again come to question number 2 beta. Question number 2 is same as question number 1. यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. ठीक है, so let us start. Question number 2, first part. px is 2x cube. Hurry up, start doing yourself. लिखना शुरू करो. 2x cube plus x square minus 2x minus 1. And the divisor is gx. gx ले लो. gx लिखा है तो gx लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से लेना तो gx लो चाहे qx. मैं सेकंड पार्ट करवाती हूँ. फर्स्ट पार्ट में x plus 1 नहीं है तो वो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया. सेकंड पार्ट में भी. फर्स्ट पार्ट you will do yourself. x cube plus 3x square gx is x plus 2. Now what they are saying? By using factor theorem, tell whether gx is a factor of this. तो आपको पता है अभी हमने किया है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं. फैक्टर थ्योरम लगाकर, नहीं भी फैक्टर थ्योरम लिखा और डिवीजन भी नहीं लिखा तो आपने फैक्टर थ्योरम ही लगानी है. ठीक है, gx को 0 से इक्वेट करेंगे. x की वैल्यू आएगी बेटा -2. Now p of -2, we have to fill the value with this polynomial now, right? So let us substitute. -2 cube plus 3 into -2 square, 3 into -2 plus 1. Very carefully you have to substitute the value. ठीक है, अब सॉल्व करेंगे. -2 cube, -2 into -2 into -2, right? 3 बार माइनस है तो माइनस, 2 2s are 4, 2s are 8. -2 cube is -8 plus 3 into -2 square means -2 into -2, minus minus plus, 2 2s are 4. And plus into minus minus, 3 2s are 6 plus, आगे देखो, -8 plus 12 minus 6 plus 1. Now negative numbers 8 and 6, -14 plus 13. सॉल्व करके हमारे पास क्या आया? -1. Since remainder is not 0, therefore gx is not a factor of px. Note down. Any doubt to anyone, beta? Please ask. Start doing the third part, everyone. सारा डिटेल नहीं लिखनी, शॉर्ट में करो.
and tell me whether it is a factor or not. Start doing the third part. Hurry up. Hurry up, beta. करो. So in the third part, the remainder is 0. Therefore, gx is the factor of px. If anyone is not getting remainder 0, please better try again. All right. Now, next question number 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px. अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और x minus 1 उसका फैक्टर है. x minus 1 उसका फैक्टर है. जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल था ये, ठीक है, आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके रिमाइंडर आया 0, तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है. अब इस क्वेश्चन में रिवर्स है, ठीक है, मींस इसमें वो कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है. अगर ये इसका फैक्टर है बेटे, तो इसका मतलब इसको इक्वेट करके जो वैल्यू आएगी उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0. हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0. और क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए हम अपने पॉलिनोमियल में जब वैल्यू फिल करेंगे तो उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. So as to find the value of k. Getting my point? Here it is written that this is the factor. If this is the factor, तो इससे जो भी वैल्यू आती है उसको पुट करने पे रिमाइंडर 0 ही आता है, तभी वो उसका फैक्टर बनता है. ठीक है. So third question, first part is x square plus x plus k. Now, since x minus 1 is a factor of px, x minus 1 is a factor of px, therefore, p of x की वैल्यू क्या थी 1, therefore p of 1 will be equal to 0. इसको इक्वल टू 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को जब हम पॉलिनोमियल में फिट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा. क्योंकि आंसर 0 आता है इसीलिए उन्होंने कहा ना कि वो उसका फैक्टर है. बस अब वैल्यू पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. 1 plus 1 plus k is equal to 0. 2 plus k is 0. The value of k is minus 2. Note down. Any doubt? तो देखो हम जो भी कर रहे हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए, इसमें क्वेश्चंस किए, हम ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, डिवाइजर को 0 के इक्वल इक्वेट करके जो वैल्यू आती है वो उसमें पुट करते हैं. ठीक है, बस लिखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि whether that is a zero of the polynomial, whether that is a factor of polynomial, या ऐसे k की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर लिखना पड़ता है since it is a factor. ठीक है, लिखने में ऊपर नीचे थोड़ा हो भी जाए बेटा तब भी आपका आंसर सही होगा तो you get full marks. But you should know how to write properly. अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, डिवाइजर को 0 के इक्वल इक्वेट करके
वैल्यू निकाल, उसमें उसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज 2x square plus kx plus root 2. Again, same. Since x minus 1 is a factor of px, therefore p of 1 is 0. Now 1 की वैल्यू 1 कहाँ पुट करेंगे, इसमें 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2 is equal to 0. 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 is 2 plus k plus root 2 is equal to 0. अब k की वैल्यू चाहिए, 2 भी इधर पर प्लस हो रहा है, रूट 2 भी उधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाके दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस। चाहे एक एक करके ले जाओ, चाहे दोनों इकट्ठे ले जाओ, और चाहे यहीं छोड़ दो, चाहे ऐसे, वन एंड द सेम थिंग। मैम हाँ जी, मैम बोलो। कल 10 मिनट से ना क्लास बंद हो गई थी मैम, नेट बंद हो गया था ना पीछे से। मैम आप बता सकते हो आपने क्या करवाया? बेटा एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग डालूंगी स्कूल चैनल पे, वहां से देख लेना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ ऋतिक। I hope it is clear. Any doubt? So now let us discuss third part also. kx square है, वैसे ये पार्ट्स इजी बेटा, बट रूट वाले हैं तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, so as to avoid any confusion. Again x plus 1, x minus 1 इसका फैक्टर है, तो p1 0 k into 1 square minus root 2 into 1 plus 1 is equal to 0. 1 का स्क्वायर 1, 1 into k minus root 2 into 1 is root 2 plus 1 is equal to 0. We need the value of k. तो सीधा ले जाओ या ऐसे कर लो, पहले 1 उधर लेके जाओगे -1, फिर रूट 2 उधर लेके जाओगे तो प्लस। सो द वैल्यू ऑफ k इज -1 प्लस रूट 2। 1 पॉजिटिव था लेफ्ट साइड पे, राइट पे जाके नेगेटिव, रूट 2 नेगेटिव था, राइट पे जाके पॉजिटिव। वी कैन नॉट कंबाइन, दिस इज rational, this is irrational, so we cannot combine. This is the value of k. Now beta, try the fourth part. Hurry up. Question number 4 we will start tomorrow. You all try fourth part and tell me the answer. Hurry up. हाँ जी, hurry up. Do it and tell me.
Yes, Aparan. Ma'am, 3/2. 3/2. Okay. मैम एक डाउट था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में के वैल्यू निकाली -1 +√2, उसे हम ऐसे भी लिख हाँ। सकते हैं ना, माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर 1 और -√2। हाँ जी, बट डालने की क्यों है, जरूरत क्या है, लिख दो ऐसे, k -3 + 1 = 0. Sorry, this is k, not x. Right? K 1 square 1, 1 into k, k -3 + k = 0. Now this is k plus k. 2k - 3 = 0. 2k is 3. K is 3/2. Right? So all the questions you need to do in fair. We'll continue tomorrow, beta. Right? Take care.